Hello friends, a warm welcome to all of you on my channel, and today now in this video we will discuss in topology connected and disconnected sets. So let's discuss. First of all, I'm going to tell you about the definition of connected and disconnected sets. Along with that, I will discuss a theorem and based on the connected sets, and along with I will discuss also the examples of this theorem, so you will be really understand easily. Okay, so please make sure that you have to make at the end of this video. So let's discuss first the definition of this. What is the connected and disconnected sets both? So yeah, suppose you have a topological space and x comma tau be a topological space. I have write down here, you can see that x comma tau, x is our set and tau is the subset of all sets of subsets of all x sets. So be a topological space, make a topological space, and a subset A of capital X is said to be a tau disconnected. Capital A is the subset of X. It is called tau disconnected when, if and only if, it is the union of two non-empty tau separated sets. Means what? If you have two non-empty sets, two non-empty disjoint sets, and if you take the union of two non-empty disjoint sets, so it will take what? It is said to be tau separated sets if and only if there exist two non-empty sets like C and D such that C intersection D closure is equal to phi and C closure intersection D is equals to phi, where set C and D are two disjoint sets and two non-empty sets as well, right? So A is equals to C union D. So A is said to be connected if and only if it is disconnected. Okay, so both our definitions are combined in this definition. So what I am going to tell you about first disconnected sets. ओके देखिए, दो सेट्स हैं, डिसकनेक्टेड सेट्स हैं हमारे पास, यानी डिसजॉइंट सेट्स हैं जिन्हें हम डिसकनेक्टेड सेट्स कहेंगे. तो टाउ डिसकनेक्टेड कब कहेंगे? जब आपके पास दो डिसजॉइंट सेट्स हैं और नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और अगर आपने इसका पहले सेट को सी जिसे हमने लिया और इंटरसेक्शन इसका कर रहे हैं डी क्लोजर के साथ, यानी उसके डी क्लोजर के साथ अगर आप इंटरसेक्शन इसका लेंगे वो फाई आना चाहिए, इम्प्टी आना चाहिए, यानी कि ठीक है, तो इम्प्टी सेट आना चाहिए. दो नॉन इम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स का आप इंटरसेक्शन लेंगे, ऑब्वियसली वो हमारा क्या होगा? इम्प्टी सेट्स होगा. इसी तरीके से सी का इनक्लोजर लेंगे इंटरसेक्शन डी के साथ, तो वो भी हमारा क्या होगा? इम्प्टी सेट होगा. एंड जो हमारा ए सेट था, जो हमने लिया था, वो हमारा क्या था? सबसेट था एक्स का. वो हमारा क्या होगा? वो इक्वल हो जाएगा अगर आप दोनों के, वो इक्वल आएगा दोनों के जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे, यानी दो जो सेट्स आपने लिए सी और डी लिए, इनका यूनियन आप लेंगे तो ये इक्वल होगा हमारे ए सेट्स के. तो ऐसे जब इस तरीके से जो कंडीशन को फॉलो करता है, देन हम कहते हैं कि ए जो हमारा है वो डिसकनेक्टेड सेट होगा. ठीक है, ए का डिसकनेक्टेड सेट होगा ए. और कनेक्टेड सेट ए कब होगा? जब आप कहेंगे जब इसी का कन्वर्स होगा, यानी कि इसी कंडीशन को आप अगर कन्वर्स करें तो ये उसी का कॉन्जुगेट है, आप कह सकते हैं. तो डिसकनेक्टेड का ही कहेंगे, हमें उसे कनेक्टेड सेट्स कहेंगे. तो ए इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ डिसकनेक्टेड. अगर ये सेट डिसकनेक्टेड नहीं है तो ये क्या होगा? कनेक्टेड होगा हमारा. ठीक है, और डिसकनेक्टेड नहीं होगा कब? जब इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, तो जब इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो हम उस सेट को क्या कहेंगे? कनेक्टेड कहेंगे. तब हमारा ए सेट जो होगा वो कनेक्टेड होगा. अदरवाइज हमारा सेट जो है अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देन आवर सेट ए इज़ disconnected, right? So let's understand the example. So here I have example number 1, the empty set, right? You have empty set and it is also very open set and closed set. You know about it. Both open and empty set is both open and closed. So empty set is trivially connected, right? ये हमारा कनेक्टेड होगा सेट, बिकॉज ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा. बिकॉज आप इम्प्टी सेट्स को दो इम्प्टी सेट्स लेंगे और उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा? वो क्या होगा? इम्प्टी सेट्स जो हैं हमारे ओपन एंड क्लोज बोथ हैं, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, डिसकनेक्टेड कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे. इसीलिए वो क्या होंगे? हमारे कनेक्टेड सेट में आएंगे. तो इसलिए हमने इम्प्टी सेट को क्या लिया? ट्रिवियली वो कनेक्टेड सेट्स होंगे. ठीक है ना, तो वो क्योंकि उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारा फाई नहीं होगा. नेक्स्ट हम कहते हैं कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो एवरी सिंगल्टन सेट इन स्पेस इज़ कनेक्टेड, राइट? सिंगल्टन सेट को अगर आप ले रहे हो तो वो भी जो है कनेक्टेड होगा हमारा, वो भी डिसकनेक्टेड सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो हमारा जो है एवरी सिंगल्टन सेट क्या हो जाएगा? कनेक्टेड हो जाएगा. सो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है,
तो यहाँ हम थ्योरम पर चलते हैं। तो थ्योरम क्या कह रही है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज डिसकनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इन एक्स। Very important theorem, you have to write down here, which is important. So let's understand what is the statement tells you. It says that a topological space x, you have a topological space x and tau which is disconnected if and only, when it is disconnected if and only if there exists a non-empty proper subset. अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट x का एग्जिस्ट कर रहा है, करेगा जब ये सेट हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड होगा, और वो क्या होगा, बोथ होगा, ओपन एंड क्लोज्ड दोनों ही होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों कंडीशंस को शो करनी। पहले हमें क्या शो करना है, हमें पहले डिसकनेक्टेड दिखाना है, देन हम शो करेंगे कि ये जो है ओपन भी सेट एक्स जो सबसेट होगा वो हमारा क्या होगा, ओपन होगा एंड क्लोज बोथ होगा, ठीक है ना। तो एक्स को बोथ ओपन एंड क्लोज दिखाएंगे। तो पहला हमने क्या क्लेम करना है, हमने डिसकनेक्टेड प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसे। हम पहले कंसिडर क्या करेंगे, हम लेट मान के चल रहे हैं कि ए हमारा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स है, ए बी ए नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स एंड ए विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड एज वेल, राइट। एंड वी वांट टू प्रूव एक्स इज डिसकनेक्टेड, ओके। सो लेट b is equals to a dash, a मतलब a complement, okay, you can say that a complement, b is equal to a complement. Here b is non-empty set since a is a proper subset of x, because here b is your non-empty set and b is equal to a dash, so a dash is also a non-empty set, right? And b is equal to a dash means a dash here what, a dash is here a proper subset of x, because I am taking here क्या, a जो ले रहे हैं वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट x का ही का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ x, राइट। So moreover what we can say here, we can say about a and b both. So a, if you take the union of both a and b, so it will becomes x, okay, it is equal to the x, equivalent to the x. So a equal to b is equal to x, and suppose and both conditions are also satisfied for disconnected, so it is equal to phi, right. So since a is both open and closed, right, so, and here a is both open and closed and a dash is equals to b, so b is also both open and closed, right. And if a is both open and closed, so what happens, their condition is a closure is equals to a. अगर a closed है तो a closure उसके a के इक्वल होता है, एंड b का क्लोजर भी b के इक्वल होगा, क्योंकि a और b दोनों ही यहाँ पे क्या है, क्लोज हैं, ठीक है। तो क्लोज है तो इनका क्लोजर इक्वल होगा a के, और b का भी क्लोजर जो है b के इक्वल होगा। तो अगर आप क्या करें, यहाँ पे a का इंटरसेक्शन b के क्लोजर के साथ लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, a और b जो है दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों डिसजॉइंट सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। एंड दस एक्स हैज़ बीन एक्सप्रेस, तो अगर इसका इंटरसेक्शन जो हम ले रहे हैं वो फाई आ रहा है, देन मीन्स कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्स को यूनियन में ए और बी के। तो हम क्या कर सकते हैं, यूनियन और में ए और बी के यूनियन में इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक्स क्या है, एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स के रूप में। यानी हमारा क्या है, दोनों ये जो डिस्कनेक्टेड सेट्स की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली जो कंडीशन थी कि आपका क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाई, एंड ए मतलब आपका ए इंटरसेक्शन भी नहीं, आपने सी इंटरसेक्शन डी जो भी लिया था तो वो लिख लेंगे। तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, राइट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए यूनियन बी जो है वो क्या है, एक्स के इक्वल आ रहा है। तो ये कंडीशन तीनों जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी हमारा एक्स क्या हो गया, डिसकनेक्टेड हमारा हो जाएगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा। देन हम कन्वर्सली क्या दिखाएंगे, हमें कन्वर्सली दिखाना है कि जो है एक्स हमारा क्या है, ओपन एंड क्लोज्ड बोथ है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे, पहले हमने लेट कर लेंगे कि हमारे पास अब एक्स जो है वो डिसकनेक्टेड है, ठीक है। एंड हमको शो करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इज बोथ ओपन एंड क्लोज। सो कन्वर्सली लेट एक्स बी डिसकनेक्टेड। सो इफ एक्स इज डिसकनेक्टेड देन हमको एक्स की डिसकनेक्टेड की कंडीशन फॉलो करनी है। पे मनी डिसकनेक्टेड है, देन देयर एग्जिस्ट व्हाट, देयर एग्जिस्ट टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स सच दैट ये कंडीशन फॉलो करेगी, ये ठीक है, जो हमने पहले अभी कंडीशन लिखी थी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सो ए एंड बी जो सबसेट्स हैं एक्स के, सच दैट ए का इंटरसेक्शन आप बी क्लोजर के साथ लोगे वो फाई आएगा, एंड ए क्लोजर जो होगा वो भी इंटरसेक्शन बी के साथ वो फाई आएगा, एंड ए यूनियन बी जो होगा हमारा एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो कंडीशन थी डिसकनेक्टेड की, देन वी हैव सो दैट, एंड ये तो डिसकनेक्टेड था तो हमने यहाँ तक कंडीशन दिखा दी। अब देन व्हाट वी कैन से हियर, वी कैन कंक्लूड समथिंग मोर फ्रॉम दिस, ओके। व्हाट वी कैन कंक्लूड, वी हैव टू एस्टिमेट दैट
ए यहाँ पे सबसेट है ए क्लोजर का, ओके, बिकॉज ए जो है हमारा क्या है, क्लोज्ड सेट है, ठीक है ना। ए आपका ए क्लोजर क्या था, क्लोज सेट था, तो ए जो है वो सबसेट होगा ए क्लोजर का, ठीक है ना। और ए का जो क्लोजर है उसका अगर इंटरसेक्शन वी आर टेकिंग हियर फ्रॉम विद बी, तो अगर ए का इंटरसेक्शन हम बी के साथ ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो तो फाई आ रहा है यहाँ पे, है ना, फाई है, वो हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा ए जो है क्या आ रहा है, एक सबसेट है ए क्लोजर के, और ए क्लोजर ही इंटरसेक्शन बी की जो आ रहा है वो फाई आ रहा है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के क्लोजर के इक्वल आ रहा है, राइट। ए जो है वो बी क्लोजर के इक्वल आ रहा है, यानी बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ रहा है। तो ए क्लोजर, ए जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी जो था वो हमारा वो भी नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि ए जो था वो नॉन एम्प्टी सेट था, इक्वल था बी के, तो बी नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब अगर बी का इन जो यूनियन ले रहे हैं बी क्लोजर के साथ लें, बी का यूनियन जो है बी क्लोजर के साथ लेंगे तो हमारा क्या दे देगा, पूरा एक्स दे देगा हमारा, ठीक है। कैसे दे देगा, वैसे जैसे हमने पहले दिखाया था कि अगर अपने ए का जो इंटरसेक्शन ले रहे थे, ए क्लोजर, ए सबसेट था ए क्लोजर का, ठीक है, तो बी जो है वो क्या है, सबसेट होगा बी क्लोजर के, तो बी का यूनियन बी क्लोजर के साथ लेंगे वो एक्स होगा, यानी बी जो है वो हमारा ए क्लोजर के इक्वल है, ठीक है ना, ए क्लोजर के इक्वल है, फॉलो कर रहा है। तो ये प्रॉपर सबसेट है एक्स का, इसका मतलब ए को भी हम यूनियन बी क्लोजर के रूप में दिखा सकते हैं, वो भी एक्स के इक्वल होगा, ठीक। तो ए यूनियन बी क्लोजर भी एक्स के इक्वल होगा, और ये बी यूनियन बी क्लोजर भी हमारा जो है एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। ये इस तरीके से दोनों कंडीशंस होगी। अब देन हम देखो एक ये सारी कंडीशंस को थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है हमारा एक्स है, और बी क्लोजर जो है प्रॉपर सबसेट है ए बी का, और ए यूनियन बी क्लोजर क्या कह सकते हैं कि ये सबसेट था एक्स का, ठीक है, और एक्स का भी ये सबसेट होगा, ठीक है, एक्स का भी ये प्रॉपर सबसेट होगा यूनियन बी का भी। तो यानी कि दोनों का एस्टिमेट करेंगे तो वी कैन से दैट कि ए यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, राइट। ये इसके सबसेट है और ये इसके सबसेट है, तो हमारा क्या हो गया, इक्वल टू हो जाएगा एक्स के। ये कंडीशन एक वी कैन एस्टिमेट फ्रॉम दिस। सो नाउ वी कैन ऑल्सो सो दैट कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर हम जानते हैं फाई है, इसका मतलब ए जो होगा वो इक्वल होगा बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के, राइट। सो इफ ए इज इक्वल टू द बी क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, एंड सिमिलरली वी कैन से फॉर बी, सो बी इज इक्वल टू ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो बोथ we can say that in this form, and also we know that कि B closure and A closure are both closed sets, right. So B closure and A closures are closed sets. It means it follows that A and B are also two open sets, right. So A and B are two open sets. Also it follow that from B closure and A closure are closed sets, then we can show that then we know that since A is equals to B complement, right. So A is equal to B complement, we know that. So here we can say that we know that A is closed, right. So if A is closed and A is equal to B closure means B is also closed, right. So here we know that also from with more that about A closed, because we know that कि A closed है and A is also non-empty proper subset of X, right. ये हमारा नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट भी एक्स का, विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड ऑल्सो है। यहाँ से हमने क्लोज दिखा दिया था, और हम जानते हैं कि क्लोजर है इक्वल डैश के, हमने ये भी पहले बी दिखाया कि बी भी हमारा क्या है, वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एक्स का, और वो भी क्या है, ओपन एंड क्लोज्ड बोथ है, ठीक है। तो ये तो कंडीशंस हमने दोनों की इस तरीके से दिखा दी है। तो ऐसे एस्टिमेट करना है आपको ए क्लोजर ए और बी के जो है दिखाना है कि ये दोनों क्या है, क्लोज्ड सेट्स हैं, क्लोज्ड एज वेल एज ओपन सेट्स हैं, और दोनों ही क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, ओपन क्लोज सेट्स हैं, और ये जो है क्या है, तो सबसेट्स हैं एक्स के, और एक्स भी हमारा क्या है, वो दोनों ओपन एंड क्लोज्ड बोथ है। सो आई होप so in this form we can estimate this theorem. I hope you understand, and if somehow you have any doubt regarding this, please you can comment me. I will definitely reply you, and you can support me by subscribing the channel and like and share, doing like and share, okay. Thank you so much viewers, we will be meet soon in the next video. Till then, bye bye, take care.